اس باوقار نشست کو سیرت ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کا اہم اور محبت بھرا عنوان دیا گیا ہے۔ برادر عزیز، خطیب اسلام حضرت مولانا مظفر حمید صاحب وٹو حافظ اللہ تعالی نے مجھے سیرت اور صحابہ کرام کے حوالہ سے مشترکہ گفتگو کا حکم دیا ہے۔ کوشش کروں گا دونوں تقاضے پورے ہو سکیں۔ میں نے خطبہ میں سورۃ الکوثر کی تلاوت کی ہے۔ سورۃ الکوثر قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت ہے، جس کی 3 آیات ہیں، 10 کلمات ہیں اور 42 حروف ہیں۔ جامعیت اس کی اس قدر ہے، ہر آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک مستقل اور علیحدہ عنوان اور مضمون کو ذکر فرمایا ہے۔ پہلی آیت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اس میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ و مقام کا ذکر ہے۔ دوسری آیت فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اس میں ہادی عالم کے مشن اور پروگرام کا ذکر ہے۔ تیسری آیت اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اس میں رہبر انسانیت محبوب دو عالم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن اور عدو کے انجام کا ذکر ہے۔ قرآن کریم کی یہی وہ صورت ہے جس کا اعجاز اس قدر ظاہر اور باہر ہے کہ اہل عرب کا سب سے فصیح شاعر، جس کے کلام کو بلاغت بھرا مانا جاتا تھا، لبید بن عاصم، اس نے اس کے آخر میں قسم کے ساتھ ما ھذا قول البشر لکھا تھا۔ اس سورہ مبارکہ کے مفسرین کرام نے متعدد شان نزول تحریر کیے۔ ڈاکٹر علامہ محمد علی صابونی رحمۃ اللہ علیہ التبیان فی علوم القرآن میں لکھتے ہیں، ایک سورت یا آیت کے نزول کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے سبب نزول میں مفسرین نے کئی واقعات کا ذکر کیا۔ خلاصے کی بات آپ کی توجہ کی نظر کرتا ہوں تاکہ عنوان اس پر مرتب ہو سکے۔ مکی زندگی میں ابتدائے اسلام میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ جگر، آپ کے نور نظر حضرت قاسم کا انتقال ہوا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جانب جدائی کا صدمہ اور غم تھا، یہ انسان کی فطرت ہے، اور نبی سب سے کامل انسان ہوتا ہے۔ ایک طرف یہ صدمہ اور غم تھا، دوسری جانب مشرکین مکہ میں اور ان کے ایک بڑے جس کا نام مفسرین نے عاص بن وائل سہمی لکھا ہے، یہ پروپیگنڈا کیا کہ آپ کی نرینہ اولاد دنیا سے رخصت ہو گئی، کسی بھی انسان کا نام، اس کا مشن اور پروگرام اس کی نرینہ اولاد کی بدولت زندہ رہتا ہے، اور آپ کی نرینہ اولاد ہی نہیں رہی تو آپ ایک وقت آئے گا اپنا نام و نشان کھو بیٹھیں گے۔ اس نے آپ کو ابتر کہا، مقتول نسل کو کہتے ہیں۔ ایک طرف بیٹے کی جدائی کا غم تھا، دوسری جانب اس پروپیگنڈے نے غم اور صدمے میں اضافہ کر دیا۔ پروردگار عالم نے اپنے نبی کو غمگین دیکھا تو تسلی کا ایسا انتظام فرمایا جس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ کی تسلی کے لیے اسی سورۃ الکوثر کو نازل فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، فصل لربک وانحر، یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اس کا شکر بڑا ہو۔ فصل لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ ان شانئک هو الابتر، آپ کا دشمن بے نام و نشان رہے گا۔ اللہ نے اس سورہ مبارکہ کو نازل فرما کر اپنے حبیب کو تسلی دی۔ یہاں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، کوثر ایسی کون سی نعمت ہے کہ جس کو اللہ عطا کر کے تسلی دے رہے ہیں، اور تسلی ایسی کہ جو بیٹے کی جدائی کا غم بھلا دے۔ پروپیگنڈے کے اثر سے اللہ کے حبیب کو جو صدمہ ہوا وہ جاتا رہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے آخر کوثر ایسی کون سی چیز ہے کہ تسلی کے طور پہ اللہ نے اسے ذکر فرمایا ہے؟ یہ بات سمجھانے کے لیے، اس نعمت کی عظمت اجاگر کرنے کے لیے مفسرین کرام کے اقلام حرکت میں آئے۔ انہوں نے کوثر کے معانی رقم کرنا شروع کی۔ کسی نے 2 درجن لکھے، کم و بیش لکھے۔ صاحب بحر محیط نے تفسیر بحر محیط میں کوثر کے 26 معانی لکھے۔ اگر ان 26 کو ایک ایک کر کے کھولا جائے تو یہ 26 تقاریر ہیں، لیکن میں اختصار کے ساتھ 5-4 آپ کی توجہ کی نظر کروں گا، اور آپ کے فہم کے لیے انشاءاللہ کافی ہوں گے۔ انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ کوثر کسے کہتے ہیں؟ کوثر کا ایک معنی مفسرین کرام نے حوض کوثر کیا۔ اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر یعنی حوض کوثر عطا کیا۔ سوال یہ ہے حوض کوثر کیا ہے؟ ایسی کون سی نعمت ہے کہ اتنے بڑے صدمے کو کافور کر دے، بڑے غم کو حرم کر دے؟ اللہ کے نبی نے اس کی وضاحت خود فرمائی۔ فرمایا حوض کوثر میدان محشر میں ایک کنواں ہے۔ حوض کوثر میدان محشر میں ایک کنواں ہے، اور اس کی منیر پر، کناروں پر اتنی کثرت سے پیالے رکھے گئے ہیں، جتنی کثرت
से आसमान पे सितारों को सजाया गया है। मुहक्किक उलमा इस कसरत की वजह जिक्र करते हैं कि नबी के दामन रहमत में आके नबी के किसी उम्मती को इंतजार की ज़हमत न उठानी पड़े, इसलिए अल्लाह ने बेहिसाब प्याले हौज़ कौसर की मडेर पे चुन दिए हैं। फिर ये हौज़ कौसर है जो मंबा है, इससे नहरे कौसर निकलती है, नहरे कौसर से दीगर अनहार निकलती है। अल्लाह फरमाते हैं हबीब नबुव्वत और भी बहुत सारों को दी, रिसालत कई अफराद को दी, अज़मतें बहुत सारों में बांट दी, लेकिन हौज़ कौसर की नेमत फकत तुझे अदा की। इन्ना आतैना कल कौसर, ए हबीब तसल्ली कीजिए, हमने आपको कौसर अता किया। दूसरा माना कौसर का क्या है? दूसरा माना है नहरे कौसर। नहरे कौसर क्या है? आमीना के लाल महबूब रब्बे ज़ुल जलाल साहिबुल हुस्न वल कमाल जनाब मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुस्तफा हबीब किबरिया फखरुल अंबिया सय्यदुल वरा शम्सुल ज़ुहा बदरुल दुजा रहबरो रहनुमा ला युमकिनुस सला मकीन गुंबद खजरा बलगल उला कशफत दुजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौसर जन्नत की वो नहर है जिसके दोनों किनारे सोने के हैं, फर्श मोतियों और याकूत का है, मट्टी कस्तूरी से ज्यादा खुशबूदार है, पानी शहद से ज्यादा मीठा है, बर्फ से ज्यादा साफ और शफाफ है। हबीब अंबिया और भी है, लेकिन साहिब कौसर फकत आप है। इन्ना आतैना कल कौसर, ए हबीब हमने आपको कौसर अता किया। मतलब हौज़े कौसर भी फकत आपका, नहरे कौसर भी फकत आपकी। ज्यादा अबहास में नहीं जाना चाहता। इमाम फखरुद्दीन राज़ी ने तफसीर कबीर में एक नुक्ता उठाया कि जन्नत में नहरें और भी है, लेकिन उन्हें कौसर नहीं कहा गया। इस नहर को कौसर क्यों कहा गया? फिर इसका जवाब लिखा, इसमें मनाफे कसीर है, इसमें भलाइयां कसीर है, इसमें पानी कसीर है, इससे पीने वाले कसीर होंगे। गोया कसरत को इस नहर के साथ खास मुनासबत है, इसलिए बाकी फकत नहरें हैं और ये नहर नहरे कौसर। इन्ना आतैना कल कौसर, ए हबीब हमने आपको कौसर अता किया, जिसके साथी आप हैं, जिससे पिलाने वाले आप होंगे, जिसे एक दफा दस्ते नबुव्वत से साथी कौसर पिला देंगे, जन्नत में पहुंचने तक उसे किसी आग की जरूरत महसूस नहीं होगी। इन्ना आतैना कल कौसर, हबीब आप तसल्ली कीजिए। बेटे का लेना हिकमत है, कौसर का देना इनायत है, आपको अता की। सवाल पैदा होता है, आगे बढ़ने से कबल एक नुक्ता आपकी तवज्जो की नजर करता चलूं। बाकी अंबिया धरती कायनात पर जो तशरीफ लाए, उनकी नरीना औलाद बालिग हुई, सिफत रजूलियत से मुत्तसिफ हुई और जवान हुई। सवाल ये है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नरीना औलाद बालिग क्यों न हुई, सिफत रजूलियत तक क्यों न पहुंच सकी? इसकी हिकमत क्या है? इसकी हिकमत ये है, अगर हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नरीना औलाद बालिग होती, जवान होती, फिर उसे नबुव्वत अता न होती, ये हुजूर की शायान शान नहीं था। और अगर उसे नबुव्वत अता न होती, कोई कह देता इब्राहिम के बेटे इस्माइल जवान हुए, उन्हें नबुव्वत मिल गई, इब्राहिम के बेटे इसहाक जवान हुए, उन्हें नबुव्वत मिल गई, इसहाक के बेटे याकूब को नबुव्वत मिल गई, याकूब के बेटे
دیگر انبیاء کے پاس فقط نبوت کا احساس ہے، آپ کے پاس بھی وہی ہوتا، آپ کے پاس ختم نبوت کا تاج نہ ہوتا۔ اب کیا ہے؟ باقی انبیاء کے پاس فقط نبوت ہے، خاتم الانبیاء کے پاس نبوت بھی ہے، ختم نبوت بھی ہے، باقی فقط نبی ہے، آپ آخری نبی ہے۔ اللہ آپ کو ختم نبوت کا تاج پہنانا چاہتے تھے، اس حکمت کے تحت نبوت کو لے لیا اور ختم نبوت عطا کر دی۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بیٹے کا لینا حکمت ہے، کوثر کا عطا کرنا عنایت ہے، بیٹے کا لینا حکمت ہے، نبوت رجوع بننے سے پہلے بلا دی گئی حکمت ہے، اور کوثر کا عطا کرنا محبت ہے، مودت ہے، الفت ہے، عقیدت ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کی اولاد کو بالغ نہیں ہونے دیا، نرینہ اولاد کو، تاکہ آپ کے پاس فقط نبوت نہ ہو، ختم نبوت کا تاج آپ کی پیشانی پہ سجے۔ اور یاد رکھیے، ختم نبوت سے بڑا احساس ہے، انبیاء تو کم و بیش 1.25 ہے، لیکن خاتم الانبیاء فقط ایک ہے، اور وہ محمد مصطفیٰ۔ عرب کے اندر وہی معظم، عرب کے اندر وہی معظم، عجم کے اندر وہی مکرم، وہ فخر آدم، امان آدم، امین محکم، رسول اکرم۔ تو کوثر کا ایک معنی حوض کوثر، دوسرا معنی نہر کوثر۔ آگے تیسرے معنی کی جانب بڑھتے ہیں۔ کوثر کا تیسرا معنی رفعت ذکر۔ اے حبیب، ان کا کہنا یہ ہے، نرینہ اولاد نہیں، آپ کا ذکر کیسے زندہ رہے گا؟ نرینہ اولاد نہیں، ذکر کو رفعت کیسے ملے گی؟ یہ رفعت پہ پریشان ہے، لیکن جس نے تجھے نبی بنایا ہے وہ ذکر کی رفعت کو ابدیت دینے کا بندوبست بھی کر چکا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب، ہم نے آپ کو کوثر یعنی ذکر کی رفعت عطا کی۔ ان کا کہنا یہ ہے، جب نرینہ اولاد نہیں رہی تو آپ کا نام و
हिकमत अता की। और एक माना मुफस्सिरीन ने ये किया, हमने आपको कसरत औलाद अता की। नरीना औलाद का देना हिकमतन है और रूहानी तौर पे औलाद की कसरत अता कर देना इनायतन है, मवद्दतन है। इन्ना आतैना कल कौसर, हुजूर की नरीना औलाद हिकमत के तहत ले ली गई, रूहानी औलाद उसकी कसरत। फिर अगर नबी के खानदान को ही देख लिया जाए, दुनिया का कौन सा मुल्क है, किस मुल्क का कौन सा शहर है जिसमें सादात आबाद नहीं है? औलाद की कसरत, औलाद की कसरत। और फिर आपकी औलाद में भी खास तौर पे असहाब, आपके असहाब, उनका तो कहना ही क्या, उनका तो कहना ही क्या। हबीब बेटे का लेना हिकमत है और इस मुकद्दस जमात का देना तसल्ली और इनायत है। कभी कभी बेटा यूं भी कह देता है, सआवी इला जबरिन यासिमुनी मिनल मा। कभी कभी बेटा बाप को छोड़ देता है, जो तुझे अता किए हैं उन्होंने तेरे लिए बाप को छोड़ा है, उन्होंने तेरे लिए बाप को छोड़ा है। उठाइए ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत को सवार। तुझे ऐसे अता करूंगा वो तुझे बेटे याद नहीं आने देंगे, तुझे बेटे याद नहीं आने देंगे। सीरत की किताबें कहती है जब हज़रत ज़ैद बिन हारिसा का वालिद, उनका चचा और अज़ीज़ो अकारिब मालूम करके हुजूर की खिदमत में पहुंचे कि आपके पास ये गुलाम हमारा बेटा, इसे हम तोल देते हैं मालियत में, रकम में, दिरहम और दनानीर में, इसे आजाद कर दीजिए। आमीना के बाद महबूब रब्बे ज़ुल जलाल साहिब हुस्न वल कमाल कहते हैं, जाओ ज़ैद से जाके पूछ लो, अगर तुम्हारे साथ जाना चाहे मैं मोहम्मद की रहमत की इजाजत नहीं देती, तुमसे मुआवजा दो, लेकिन अगर वो तुम्हारे साथ न जाना चाहे तो मैं जबरन भी नहीं भेजूंगा और जबर की तुम्हें भी इजाजत नहीं दूंगा। वालिदैन खुशी खुशी गए कि कौन है जो आजादी की जिंदगी पे गुलामी की जिंदगी को तरजीह दे। तारुफ पूछा, ज़ैद ने नाम बनाम गिनवा दिया, ये चचा है, ये वालिद है, ये खुदा रिश्तेदार है, ये खुदा रिश्तेदार है। जब साथ जाने का कहा तो आपकी डिमांड में आपकी पूरी नहीं कर सकता, ये ख्वाहिश आपकी पूरी नहीं कर सकता, इसलिए कि मुझे आमीना के दामन रहमत में वो मोहब्बत, अकीदत, उल्फत, प्यार और शफ़क़त मिली है कि हजारों माँ बाप उसकी एक झलक में कुर्बान हो सकते। ये तुझे बेटे याद नहीं आने देंगे। हबीब तूने भी इन्हें बाप याद नहीं आने देगा, तुझे ऐसी औलाद अता की, कसरत औलाद। और फिर उनमें एक मखसूस तबका जिसे असहाब कहते हैं, उसके तो कहने ही क्या। हुरैरा फरमा रहे थे, सहाबा के फज़ाइल मेरी बात की इख्तिताम को पहुंचने वाली है, समेटते हुए इशारों में चंद बातें अर्ज करता हूं। अल्लाह ने बेटे हिकमत के तहत लिए और क्या औलाद रूहानी, क्या असहाब आपको अता किए। देखिए
फरमाया असहाबी, मेरे सहाब, मेरे सहाब, निस्बत अपनी तरफ की। आज मुर्दे क़यामत का ज़माना है, अफरा तफरी का दौर है, फितन वक्त गुजर रहा है, लेकिन इसके बावजूद हकीकी बाप अपने नाफरमान बेटे की निस्बत अपनी तरफ नहीं करता। वो मुताबिक इश्तिहार अखबारात में आपके लिए आप पढ़ते रहते हैं, लेकिन नुज़ूल वही के ज़माना में अल्लाह से उस वक्त राबिता मोहम्मद मुस्तफ़ा का था जो किसी का नहीं था। उस जमाने में हुजूर सहाबा की निस्बत अपनी तरफ करे, चचा है निस्बत अपनी तरफ नहीं की, रिश्तेदार है निस्बत अपनी तरफ नहीं की, अजीज़ो अकारिब है निस्बत अपनी तरफ नहीं की, कुरैशी है निस्बत अपनी तरफ नहीं की, लेकिन एक रूम से चल के आया उसकी निस्बत अपनी तरफ कर दी, एक हबशे से चल के आया उसकी निस्बत अपनी तरफ कर दी, एक फारिस से चल के आया उसकी निस्बत अपनी तरफ कर दी। पर मैं असहाबी, ये मेरे असहाब, मेरे साथी, मेरे तरबियत याफ्ता, मेरे गमखार, मेरे मुहिब, मेरे महबूब, मेरे मोतबर, मेरे मंसूर नजर है। अल्लाह के नबी के जितने सहाबा हैं उन्हें निस्बत मोहम्मदी हासिल है और हम निस्बतों के कदरदान में है। हम मदीना को मदीना नहीं कहते नबी की निस्बत की वजह से, मुनव्वरा कहते हैं। हम कद्दू को कद्दू नहीं कहते नबी की निस्बत की वजह से, कद्दू शरीफ कहते हैं। और सहाबाए किराम तो वो जमात है, इनसे मजबूत निस्बत मोहम्मद मुस्तफा के साथ किसी की नहीं है। इसलिए आप सुन्नत पर जमात इस निस्बत की कदरदानी करते हुए असहाबे रसूल की मोहब्बत को ईमान समझते हैं। निस्बत मोहम्मदी के हामिल, निस्बत मोहम्मदी के हामिल और नबी की निस्बत की नाकदरी कितना बड़ा जुर्म है। एक छोटी सी मिसाल जिक्र करता हूं। हजरत काजी अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के सामने किसी ने कद्दू को नापसंद किया तो हजरत ने फरमाया जद्दीदिल ईमान व इल्ला नअक्तुलन्नक, फौरन ईमान की तजदीद कीजिए वरना मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। यह निस्बत मुस्तफ़वी है, निस्बत मुस्तफ़वी है। कितने अफसोस की बात है अगर कोई मोमिन नबी के रोजे की जाली देख आए, उसे तो ये मुआशरा जन्नती समझे, और जो रोजे वाले के पहलू में सोए हुए हो उनके ईमान पे भी से शक गुजरे। ऐसा कब का दुश्मन कौन होगा जो अपने यारों से मोहब्बत करे और नबी के यारों से नफरत करे? वो नबी की मेहनत का है खुलासा, वो नबी की मेहनत का है खुलासा। इल्म और अमल के बेहतर सौदो बड़ा सरापा, मिशन था जिनका दीने नबी का बनवा। कितने वजूद और जरी थे नबी के साथ। बेटों का लेना हिकमत है, असहाब का देना तसल्ली और इनायत है। ऐसे असहाब अदा किए, ऐसे जो नबी के दीन के ऐनी शाहिद है, नबी के नुमाइंदे हैं। बताइए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के ऐनी गवाह कौन है? सहाबा। वही तो है जिन्होंने कुरान को पढ़ते देखा, वही तो है जिन्होंने मोहम्मद की तकरीर सुनी, मोहम्मद के अमल को देखा। वही तो लोगों से कुर्सियां हैं जो सफर हजर में नबी के मामूलात देखते रहे। यही कुर्सी सिफात लोग हैं जो दीन के ऐनी शाहिद है। याद रखिए अगर अल्लाह और रसूलुल्लाह के दरमियान जिब्राइल के वास्ते से पैगाम आए, उसे कलाम कहेंगे, उसे कुरान कहेंगे।
नबी के मिशन के नुमाइंदे फलयुबल्लिग शाहिदुल गायब किन्हें कहा गया था? फलयुबल्लिग शाहिदुल गायब किन्हें कहा गया था? ईमान और अमल के लिए मेयार और हुज्जत कौन है? सहाबा। बाकी उम्मत के ईमान के लिए मेयार और सैंपल जमाते सहाबा का ईमान। फइन आमनू बिमिस्ली मा आमनतुम बिही फक़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फइन्नमा हुम फी शिक़ाक़। गोया पाक वालों के ईमान की बुनियाद सहाबा का ईमान है। तो जो सहाबा के ईमान का कायल न हो वो अपने ईमान को कैसे साबित कर सकेगा? सहाबा किराम के ईमान की नफी करना अपने कुफ्र का एलानिया इकरार है, इसलिए कि उम्मत के ईमान की बुनियाद सहाबा के ईमान है। फइन आमनू बिमिस्ली मा आमनतुम बिही फक़द इह्तदौ। अमल का मेयार भी सहाबा का अमल है, क्योंकि नबी के अमल में खुसूसियत का इस्तेमाल भी है, तवा का इस्तेमाल भी है, साफ का इस्तेमाल भी है। और नबी का वो अमल हम अपनी जिंदगी में ला सकते हैं ला मखसूसन बिही, जो हुजूर की जात के साथ मखसूस ना हो। जैसे इन्नी रसूलुल्लाह कलेमा पढ़ना, तहज्जुद की नमाज का फर्ज होना, 4 से ज्यादा शादियां करना, और इसी तरह ला तबअल्लहु, आपकी तबीयत भी ना हो, वला सहबन अन्हु, आपसे सहब के तौर पे भी वो अमल साबित ना हुआ हो। जैसे बुखारी की रिवायत है, ज़ोहर की 4 के बजाय 2 रकातें पढ़ के आपने सलाम फेर दिया। जिस अमल नबुव्वत के में इनमें से कोई बात न पाई जाए वो उम्मत के लिए होता है, वगैरह वो बहस नबुव्वत की जात के साथ मखसूस और महदूद होता है। और ये भी पता सहाबा की जमात से चलता है कि कौन सा फकत नबुव्वत के लिए है, कौन सा सारी उम्मत के लिए है। जमाते सहाबा नबी के जिस अमल पे अमल कर ले वो पूरी उम्मत के लिए है, जिसे सहाबी छोड़ दे फकत नबुव्वत के लिए, फकत नबुव्वत के लिए है। ये छाती भी सहाबा करते हैं। तो सहाबा किराम उस छानने का नाम है। सहाबा का अमल वो छानना है जिसमें नबी की जिंदगी रखी जाती है। फिर ये सहाबा के अमल का छानना चलता है, चलता है। तो इस छानने में जो नबी का अमल ऊपर रह जाता है वो फकत नबुव्वत के लिए होता है, जो नीचे निकल आता है वो पूरी उम्मत के लिए होगा, पूरी उम्मत के लिए होता है। कसरत औलाद और मुखलिस असहाब अल्लाह ने अपने हबीब को अता किए। किस किस माना का जिक्र किया जाए, बात समझता हो, तवज्जो कीजिए। आखिरी माना अर्ज करता कौसर का। कौसर के मुताद्दद मानी है, किसको जिक्र किया जाए, किसको छोड़ दिया जाए, किसको जिक्र किया जाए, किसको जिक्र ना किया जाए। कोई ऐसा रास्ता कि सारे उसमें आ जाए, किसी की भी हद तलफी ना हो पाए। चले इस अजीम मकसद के लिए मुफस्सिर कुरान, रईसुल मुफस्सिरीन, हिब्रुल उम्मत हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कदमों में चलते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कौसर का ऐसा जामे माना किया कि जितने महानी मुफस्सिरीन ने लिखे वो सारे के सारे उसके दामन में सिमट कर आ गए, वो सारे के सारे उसके दामन में जमा हो गए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारी शरीफ में कौसर का माना लिखा। अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं अल कौसर अल खैरुल कसीर आताहुल्लाहु इय्याह। कौसर उस खैर कसीर को कहते हैं जो अल्लाह ने फकत आमीना के लाल महबूब रब्बे ज़ुल जलाल साहिबुल हुस्न वल कमाल हुजूर सरवरे कौनैन साकी कौसर
इमाम इनकलाब हज़रत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहिमहुल्लाह फरमाते हैं, खैर कसीर हर मामले की अच्छाई और भलाई को कहते हैं। क्या मतलब? अल्लाह ने अपने हबीब को जो नेमत अता की वो अपनी नौ की तमाम नेमतों में अफसल और आला है। आपको नबुव्वत अता की वो नौए नबुव्वत का आला फर्द है। बाकी अंबिया की नबुव्वत महदूद है, आपकी नबुव्वत गैर महदूद है। उम्मत अता की वो उम्मतों में आला उम्मत है। अंबिया के पास फकत उम्मत है, आपके पास खैरुल उम्मत है। अंबिया के पास फकत किताब है, आपके पास अल्लाह का कलाम है। उनके पास फकत शफाअत का एहसास है। खातमुल अंबिया के पास शफाअत कुबरा और उज़्मा का ताज है। उनका कलमा उनकी उम्मतों ने पढ़ा है। खातमुल अंबिया का कलमा आदम का ईसा जमीन उम्मतों ने पढ़ा है। उन्होंने इमामत उम्मतों की कराई है। इमामुल अंबिया ने इमामत नबुव्वतों की कराई है। इससे भी बढ़ के कहना चाहूंगा, उनका मेराज इम्तिहान की सूरत में हुआ है। खातमुल अंबिया का मेराज इनाम की सूरत में हुआ है। इससे भी बढ़ के कहूंगा, उनका मेराज अर्शे ज़मी पे हुआ है। मोहम्मद मुस्तफा का मेराज भी अर्शे बड़ी पे हुआ है। या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाद खुदा बुजुर्ग तो हुई। किस्सा मुख्तसर, आपकी तारीफ और सना का हक अदा करना मुमकिन ही नहीं, किसी के बस में नहीं, दस्तरस में नहीं। बस एक बार कह सकते हैं और कहे भी क्या कि बाद खुदा बुजुर्ग तो हुई। किस्सा मुख्तसर, वो रब आप शाह अरब, वो खुदा आप मुस्तफा, उसकी रबूबियत, आपकी नबुव्वत, उसकी उलूहियत, आपकी खत्मे नबुव्वत, उसकी खुदाई, आपकी मुस्तफाई, रब्बुल आलमीन, आप रहमतुल लिल आलमीन। इन्ना आतैनाकल कौसर, हबीब बेटे का लेना हिकमत है, कौसर का देना तसल्ली और इनायत है। नबुव्वत सब अंबिया को दी, रिसालत सब रसूलों को दी, उम्मत सबको दी, वही सबके पास भेजी, खिताब सबसे दिया, लेकिन कौसर तुझे अता किया। इन्ना आतैनाकल कौसर, आप तसल्ली कीजिए। पूरी सूरत का खुलासा आपकी तवज्जो की नजर करके स्टेज छोड़ रहा हूं, मगर वो गुफ्तगू तवील से तवील होती जाएगी। इन्ना आतैनाकल कौसर, हबीब जो तेरी शायान शान था, जो तेरी शायान शान था, जो तेरी शायान शान था। इन्ना आतैनाकल कौसर, वो हम तुझे दे के तेरे हो गए, वो हम तुझे दे के तेरे हो गए। इन्ना आतैनाकल कौसर, खैर कसीर जो तेरी शायान शान था, वो हम तुझे दे के तेरे हो गए। और वो ऐसा था जो हमने तुझे दिया कि उस जैसा किसी के पास कुछ नहीं था, इसलिए नेमत बढ़ी, उसका शुक्र भी बढ़ा। अब आप फसल्ली लिरब्बिक वनहर, नमाज अपने रब के लिए पढ़ के, कुर्बानी अपने रब के लिए करके, जो इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन का विस्तार हो, सब कुछ मेरे लिए करके आप मेरे हो जाए। जो आपके शायान शान था, हम आपको दे के आपके हो गए, तुझे दे के तेरे हो गए। तो सब कुछ मेरे लिए करके फसल्ली लिरब्बिक वनहर, मेरा हो जा हबीब। जब मैं तेरा तू मेरा, इन्ना शानियक हुवल अबतर, तेरा दुश्मन इसे देख के ही जल जाएगा, जल के मर जाएगा, जल के सड़ जाएगा, मर जाएगा। हबीब मैं तेरा तू मेरा, और जो तेरा दुश्मन है न तेरा न मेरा। और आपको दावा का अनिल हम्दुलिल्लाह।